Hello students, today we'll discuss the topic India-USA relations. So class, India-USA relations we can categorize into two phases, before Cold War and after Cold War. हमने Cold War chapter जो first chapter है उसमें already ये चीज़ discuss की थी that what was the stand of India during the Cold War times. तब हमने डिस्कस किया था कि इंडिया ना तो यूएसए के ग्रुप में था ना यूएसएसआर के. इंडिया चोज टू बी इन द नॉन अलाइंड ग्रुप. इंडिया नॉन अलाइंड कंट्रीज़ में से था. दिस इज़ द रीज़न कि यूएसए के साथ हमारे जो रिलेशन से बिफोर कोल्ड वॉर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थे. इनफैक्ट देयर वर लॉट ऑफ स्ट्रेन्स. और स्ट्रेन का रीज़न एक ये भी था कि हमने कहा कि हम दोनों ही ग्रुप में नहीं थे, बट वी वर मोर टिल्टेड टूवर्ड्स यूएसएसआर. सो ऑल्दो हमने यूएसएसआर का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया था, बट वी वर मच क्लोजर टू यूएसएसआर. दिस इज़ द रीज़न कि बिफोर कोल्ड वॉर इंडिया के यूएसए के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं थे, बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं थे. बट आफ्टर कोल्ड वॉर द कॉपरेशन नाउ हैव स्टार्टेड. और अब दोनों कंट्रीज़ में जो कॉपरेशन लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है. सो इंडिया यूएस रिलेशन हम इन टू फेजेस से डिस्कस करेंगे. दिस फ्लो चार्ट यू ऑल हैव टू मेक इन योर नोटबुक और एक्सप्लेनेशन आपको इन्हीं टू फेजेस के बेसिस पर करनी है. सो दिस नाउ वी विल डिस्कस थ्रू अ पीपीटी. स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इंडिया एंड यूएसए रिलेशंस. So as we are discussing India's external relation, so in this one of the major relations is with the superpower that we have to discuss. We had discussed about India China, India Pakistan, but India USA relations की अगर बात करें, so right from the beginning, just after independence, the relations were not so good because of the Cold War era. So class, हमने Cold War chapter में पढ़ा था that India chose to be a non-aligned country. This is the reason that USA didn't maintain any good connections with India, because USA wanted India to be the part of the capitalist group. So this is the reason कि initial phase में India USA relations बिल्कुल भी positive नहीं थे. And later on in the post Cold War period इनके relations में काफ़ी changes आए. But Cold War times में भी कुछ इस तरह के changes थे that we have to discuss. So India USA relation we have to separate in the two phases. One is post Cold War, another is before Cold War. So class, the latest development, just beginning कि अभी exactly क्या scene चल रहा है. So India US bilateral relations have developed into a global strategic partnership based on shared democratic values and increasing convergence of interest on the bilateral, regional and global issues. So both countries believe in the democratic values and ideas. This is the reason कि जब भी इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी talks है, negotiations है, so they always think themselves as the proponent of the democratic world, because USA is the most powerful country. It's a very successful democracy, and India the most successful democracy of a developing country. So developing country में इतनी largest democracy का जो experiment है वो इंडिया में है. So this is the reason कि दोनों ही nations का जो emphasis है कि world में democracy का expansion हो. तो यहाँ इन दोनों के जो thoughts हैं वो match करते हैं. The emphasis placed by the government in India on development and good governance has increased opportunity to reinvigorate bilateral ties and enhance cooperation under the motto चले साथ साथ, forward together we go and साझा प्रयास सबका विकास. ये जो phrases हैं ये भी PM नरेंद्र मोदी ने जब visits करी थी in the year 2014, and then one more summit was initiated by PM Modi in the January 2015. So at that time the president of US was Obama. So Obama times में India US relations बहुत अच्छे हो गए थे, and they all, both the countries, they all together
signed various agreements. And in 2016, in the joint statement, both the country called the India-US relationship an enduring global partners in the 21st century. But students, although ये जो relations है, it's keep on changing, changes चलते रहते हैं, but अगर हम इंडिया यूएस की बात करें तो इन दोनों के रिलेशन बिल्कुल रियलिज्म पर बेस्ड है, इसमें कोई आइडलिज्म नहीं है. हम इंडिया यूएसएसआर का अगर कंपेयर करें तो इंडिया यूएसएसआर में आइडलिज्म भी है, क्योंकि वो दोनों हिस्टोरिकल फ्रेंड्स हैं. बट अमेरिका के साथ रिलेशंस की बात है तो जहाँ बेनिफिट के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती है, प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं. नाउ इंट्रोडक्शन. So during the Cold War years, India found itself on the opposite side of the divide from the US. So introduction start from the beginning, right from 1947. So at that time, India was more close to Soviet Union. So this is the reason कि initially we were not so close with USA. But after Cold War, after the collapse of the traditional friend of India, Soviet Union, so India suddenly found itself friendless in an increasingly hostile international environment. ऐसे environment में इंडिया अपने आप को बिल्कुल alone फील कर रहा था. और फिर उसी समय इंडिया ने, आपको मैंने बताया था 91 में इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज़ किया था. तो उसी समय जब इंडियन इकोनॉमी लिबरलाइज हुई तो इंडिया ने यूएस के साथ रिलेशन मेंटेन करने स्टार्ट कर दिए बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन प्रोसेस. सो दिस पॉलिसी, the liberal policy adopted by India, and because of the impressive economic growth rate in the recent year, have made the country a very attractive partner for the capitalist country USA. अब USA इज अ capitalist country, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका ट्रेड इंक्रीज़ करना. तो जब इंडिया ने लिबरल पॉलिसी से अडॉप्ट की तो USA और इंडिया में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. सो द मेजर चेंज केम ओनली आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड. नाउ क्लास, the two major factors that work behind the India-USA relations. The two most important factor, one is the technological dimension, because आपको पता ही है कि IT sector में India is quite ahead, and Indian software engineers are giving their services in the whole world, but especially दे आर वर्किंग इन यूएसए में पूरी जो वहाँ की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो सिलिकॉन वैली में है, वहाँ पे इंडियंस की मेजॉरिटी काफ़ी ज़्यादा है और इंडियंस का कंट्रीब्यूशन वहाँ के सॉफ्टवेयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा है. सो दिस इज़ द रीज़न दैट ये जो फैक्टर है ये यूएसए के लिए काफ़ी मैटर करता है. देन नेक्स्ट इज़ द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन डायस्पोरा है. इंडियन डायस्पोरा means जो Indian origin people who are settled in America, they are known as Indian American diaspora. तो वो एक फैक्टर भी बहुत important है. So two factors work behind the relationship between India and USA. One is the Indian diaspora who is there. So बहुत मैटर करता है किसी कंट्री में. आज वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं तो इंडियन ओरिजिन पीपल का जो वोट्स है वो इतने मैटर करते हैं बिकॉज दे आर इन अ गुड नंबर. देन नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बेसिस पर भी, क्योंकि इंडिया के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दे आर वर्किंग देयर, 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बोइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन. 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली जो वहाँ का सॉफ्टवेयर जो हब है. सो दिस इज़ द रीज़न कि ये फैक्टर्स अगर आपसे 2 मार्कर में पूछा जाए तो दिस 2 फैक्टर यू नीड टू टेक केयर. नाउ क्लास, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट what are the various strategies responsible for maintaining relations between the two countries. ये बहुत important 4 मार्कर क्वेश्चन है, जनरली बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है. दैट इंडिया को यूएसए के साथ रिलेशंस मेंटेन करने में ऐसी कौन सी पॉसिबल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो फॉलो करनी चाहिए. तो 3 टाइप ऑफ ओपिनियंस आर देयर फ्रॉम द फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट्स. जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने 3 काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज़ प्रोवाइड करी हैं. वो कहते हैं कि अगर ये 3 स्ट्रैटेजीज़ में से इंडिया कोई भी एक स्ट्रैटेजी फॉलो करे टाइम एंड सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग. द फर्स्ट ओपिनियन, देर आर सर्टेन क्रिटिक्स, देर आर सर्टेन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हु सी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ लार्जली इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर are
क्वाइट fearful of the growing closeness between India and the US. कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है टू मेंटेन रिलेशंस विद USA, बिकॉज इन द लॉन्ग रन ये बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेगा, क्योंकि US पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच पे चलता है. कब US अगेंस्ट हो जाता है, कब US सपोर्ट में आ जाता है, वन जस्ट नेवर नो. सो दिस इज़ द रीज़न दे से कि इट्स बेटर टू मेंटेन अलूफनेस फ्रॉम USA, और अपनी खुद की पावर, अपनी खुद की नेशनल पावर, अपनी खुद की इंटरनल सिक्योरिटी को आप इन्हांस करो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू मेंटेन क्लोजनेस विद USA. सो USA से आप क्लोजनेस करोगे, लेकिन USA कैन चीट यू. तो इनको USA पर फेथ नहीं है. दे सी USA इन अ वेरी सस्पेक्टिंग मैनर. और इसका रीज़न भी है कि USA ने कई मामलों में इंडिया पे अननेसेसरी डिस्क्रिमिनेटरी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट करी है रिगार्डिंग इंडिया, जैसे वहाँ पे वीज़ा पॉलिसीज़ को लेकर के, ताकि इंडियंस को वहाँ पे आने से रोका जाए. ये बहुत ज़्यादा इशू चलता है. पाकिस्तान को एक्सेसिव हेल्प प्रोवाइड करना, NPT CTBT जैसी डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज़ बनाना. तो ये रीज़न भी है कि वाई वी शुड बी अलूफ फ्रॉम USA. देन द अदर एनालिस्ट, कुछ एनालिस्ट ये कहते हैं दैट दे सी द ग्रोइंग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द US एंड इंडिया एज अ हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. तब कुछ लोग, सबकी ओपिनियंस अलग अलग होती है फॉरेन पॉलिसी मैटर्स पर. तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अलूफनेस इज़ नॉट द सॉल्यूशन. वी हैव टू मेक अ टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी जहाँ पे हमें जहाँ ज़रूरत है उतना हम एडवांटेज USA से ले लें. सो वी ट्राई टू establish a mutual convergence to establish the best possible option for itself. So opposing the US, they argue, is a futile strategy that will only hurt India in the long run. वो कहते हैं कि अगर हमने अपोज किया तो हमें कब ज़रूरत पड़ेगी हम USA का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे. तो US जो डोमिनेंस है उससे हमें एडवांटेज लेना है, उससे दूर नहीं रहना. थर्ड एनालिस्ट बहुत स्पेशल एक ओपिनियन देते हैं. दे सेज that India should take the lead in establishing a coalition of countries from the developing world. Over time, this coalition would become more powerful and may succeed in weaning the hegemony away from its dominating base. ये जो थर्ड जो ये ओपिनियन है ये बता रही है कि हमें US से दूर रह कर के हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जैसे जो हमारी जैसे हालात वाली जो कंट्रीज़ हैं, कौन सी, डेवलपिंग कंट्रीज़, तो उन डेवलपिंग कंट्रीज़ का कोलिएशन बनाओ. वो कहते हैं ना यूनिटी में स्ट्रेंथ है. तो सब जब वीक जो कंट्रीज़ हैं अगर वो आपस में यूनाइट हो जाएंगे तो दे विल एबल टू गिव चैलेंज टू द सुपर पावर. सो ये कहते हैं कि भाई बेटर यही है कि अपने जो सेम स्टेटस वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो, ताकि फ्यूचर में आपस में अगर US कोई रॉन्ग पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट करता है तो ये कंट्रीज़ मिल करके उसको काउंटर कर सकती हैं. सो दीज आर द 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजीज दैट द एनालिस्ट सजेस्ट फॉर इंडिया टू अडॉप्ट. सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको कीवर्ड्स बताती हूँ 3 पॉसिबल स्ट्रैटेजीज की. नंबर 1 अलूफनेस, नंबर 2 टू टेक द एडवांटेज ऑफ US हेजेमनी, नंबर 3 कोलिएशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज. नाउ क्लास, इफ़ यू टॉक अबाउट कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इनका कॉपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव है. सो वन इज़ द डिफेंस रिलेशनशिप. डिफेंस में इन्होंने न्यू फ्रेमवर्क फॉर इंडिया US डिफेंस रिलेशंस 2005 में साइन किए. देन न्यूक्लियर डील, US से जो कभी इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट था, उसने इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन 2008 में साइन किया. इट्स अ वेरी रिमार्केबल एग्रीमेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज़ इन द ईयर 2008. सो उससे इंडिया की जो न्यूक्लियर जो रिक्वायरमेंट्स थी, इंडिया को जो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जो सप्लाईज चाहिए थी, वो अब USA के थ्रू पॉसिबल हो गई. नाउ क्लास, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स. सो एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेड, इट्स रिलेटेड टू ट्रेड. अभी रिसेंट ईयर में, इसी पास्ट ईयर में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा अराइज हो चुकी थी. ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंक्रीज़ हो गया था.
and India has been referred by the US as tariff king that imposes tremendously high import duties. And Donald Trump, who is the present president of USA, he formulated America's first policy on the economic dimension. It means reducing the US trade deficits with major trading partners. So class, डोनाल्ड ट्रम्प की जो पॉलिसी है कि अमेरिकन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, तो इससे इंडियन ओरिजिन जो पीपल हैं वो वहाँ पे काफ़ी अफेक्ट हुए, उनकी जॉब्स, उनकी जो पोजीशन थी वो काफ़ी अफेक्ट हुई। और इंडिया पर हमेशा एलिगेशंस यूएसए की तरफ से लगते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ्स लगाता है, इंडिया ट्रेड के हेल्दी जो नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं करता, तो ये ट्रेड के काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में काफ़ी स्टार्ट हो गए। Then class, Pakistan factor, that not only during Cold War times but even after Cold War, after the end of Cold War, USA gave immense help to Pakistan. तो USA एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी डिप्लोमेसी इंडिया के साथ खेलता है कि वो एक बार इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन भी मेंटेन करता है, बट ऑन द अनदर हैंड इट ऑल्सो पैम्पर्स पाकिस्तान। तो ये एक डिप्लोमेसी है उसकी कि कैसे इंडिया को अनस्टेबल करना, वो पाकिस्तान को के लिए काफ़ी ज़्यादा पैम्परिज्म चलती है, पाकिस्तान को बहुत हेल्प प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी फंड्स भी दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी डिसहार्टनिंग है इंडिया के लिए। देन इवन इन द कश्मीर इशू ऑल्सो पाकिस्तान वॉन्ट्स द US टू इंगेज विद इंडिया, एंड इंडिया जो इंडियन पॉलिसी है वो ये कहती है कि कश्मीर इज़ अ बायलैटरल इशू, वी डोंट वांट एनी अदर मीडिएशन। सो इंडिया US मीडिएशन नहीं चाहता, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि USA का इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये भी एक इशू है। तो पाकिस्तान फैक्टर, देन ट्रेड फैक्टर, दीज आर द टू मेजर फैक्टर्स। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो ये हैं दैट सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप में अमेरिका का बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया को नहीं है, कभी कभी आता है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए एज सच USA की तरफ से कोई रिफॉर्म्स का अभी तक इनिशिएटिव नहीं लिया गया। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट जो USA की जो पॉलिसीज़ हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर पार्ट, तो वो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटीज़ जो फॉलो हो रही हैं वर्ल्ड में, WTO में जो ट्रेड रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, USA की जो मोनोपोली चल रही है, it is also creating lot of tensions in the developing country. India is the main leader of developing country, तो ये भी एक major issue है। So I hope students that you all have understood this topic. This is a very important, very interesting topic. So please read this in detail also from the NCERT book.